हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Currents of the Atlantic Ocean. There is a part of air, ocean, submarine relief, and the water circulation. There is the most important currents of the Atlantic. There is the ocean. The north and south equator. There are two western moving currents, the northern and south equatorial current. Between this is equilateral current is a counter-equilateral current which is a flow from west to east. Right in the figure, and the counter current replace their water removal from to the eastern side of ocean by the north and south equilateral current. There is the most important. The south equilateral current is a bifurcate into the branches near to the Cap D, Shore, Royal, and the Brazil. It is the northern branch is joined to the northern equilateral current, and this combined current enter to the Caribbean Sea and the Gulf of the Mexico. Well, the remaining current is passes along the eastern side of the West India of the Antilles and current. There is the most important here. The part of the current which is the enter the Gulf of Mexico and the come out from the Florida Strait and the join to the Antilles current. This combined current is a move along the southeastern coastal of USA. It is known as the Florida current is up to Cape of Hatteras and behind to the Caps Hatteras is up to the Grand Banks of the New is a found land. It is called the Gulf Stream from the Grand Bank. The Gulf Stream is defected the eastward under to the combined influence of the westerlies and the rotation of the earth. It is a crosses to the Atlantic Ocean is a northern Atlantic drift. There is the most important here. It is a cross. It is the Atlantic Ocean and northern Atlantic drift. There is the most important. Here show the most important current of the Atlantic Ocean. There is the most important is equatorial current, and there is a Sarasota CO and the Canaveral, and there all has a western winds draft. There is a show of the line. There is a currents as a dotted line is called, and there is a line is a proper is a bomb area. There are current Atlantic Oceans. There is the most important here show in this map. The North Atlantic draft bifurcate into the two branches of which is their eastern part of ocean. The northern branch is a continue as the North Atlantic draft and the which the British allies from to where flow along to coast to the Norway as the Norwegians and the current is enter to the Atlantic Ocean. The southern branch of flow between the Spain and Azores Island as the called Canaries current, and this Canary current is finally join the northern equilateral current and completes. The circuit is a northern Atlantic Oceans. Within this circuit lies a Sargasso Sea, which is a fully of large quantity of sea beads, is called Sargassums as a brown algae. That is the most important here is a brown algae on the all their sea is a weeds. Apart from the clockwise is a circulation of the current in the northern Antarctic Ocean. There are also two called current. The first is the East Greenland current and the other is a Labrador current which is a flow from to Atlantic Ocean into the Atlantic Oceans. The Labrador is a current flow along the eastern coast of Canada and the meets there is a bomb Gulf Stream. And the localite it is a figure and show the confluence of these two is currents. One is a cold and the other is a hot produce fog around to the new found land and the make it is the most important fishing ground of the world. East Greenland is a current flow between to the ice land and the Greenland and the cool there is the northern Atlantica and drift at the point of their confluence. We have seen earlier that south equator current is split into two branches near a Cap D, Shore Rock and Brazil. The northern is a branch joined to the north equator current, and whereas the southern branch is
is turned south and flow along their eastern coastal to the South America as a Brazil current. At about the 35 degrees south latitude, the influence of the west lies and the rotation of the earth is a propel. There is a current eastward and the margle will there a western wind is a draft. The near to the caps of a Good Hope there a South Antarctica current is a gravitated to the northernward as the call Bengulus and current is a finally joined to the south equilateral current, the completing to the circuit. Another called current is known as the is a flank land and current flow along to the south eastern quarter of South America from south to the north. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर के जो है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है अंटार्कटिका महासागर की धराएं। देखिए अटलांटिका जो महासागर की धराएं हैं उसका क्या यहाँ पर विशेषता है, तो इसी जो है विषय पे हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं विषमवर्त रेखाओं के उत्तर व दक्षिण दिशाओं में पश्चिम की जो और प्रभावित होने वाली दो धराएं हैं, एक तो होती है उत्तर एवं दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराएं, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी जो है विषुववर्तीय धाराएं में माना गया है और इन दोनों विषमताओं धाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जो है विरोधी विषुववर्तीय धाराएं बहती रहती है। जैसे चित्र में भी हम देखेंगे ये विरुद्ध धाराएं जो उत्तरी और दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्व में जो है हटाए गए जल की आपूर्ति करती है। ब्राजील के साओ और रैक अंतरीप की जो निकट जो है दक्षिणी विषमवर्तीय धाराएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है और इसकी उत्तरी शाखा जो है उत्तरी विषमवर्तीय धाराओं में मिल जाती है और इस सम्मिलित धारा का जो है कुछ भाग कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा शेष भाग जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पूर्व किनारों पर जो है अंटार्कटिक धारा के रूप में बहती हुई गुजरती है। तो शाखा जो है मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और वह फ्लोरिडा और जलमरु मध्य से निकट जो है अंटार्कटिका की धारा में मिल जाती है और यह जो है सम्मिलित धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे बहने लग जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसे हम अंतरिप या जो फ्लोरिडा धारा भी कहते हैं। हेटेरस आंद्रियो और न्यू फ्लैंडोलैंड में समीप स्थित ग्रैंड बैंक तो इस धारा के जो है गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और जो ग्रैंड बैंक के गल्फ में स्ट्रीम जो है पछुआ पवने और जो है पूर्वी की घुमन गति की जो है सम्मिलित प्रभाव के कारण पूर्व की ओर यह मुड़ जाती है। यह जो है अटलांटिका महासागर के पूर्व की ओर बहते हुए पार करती है और इसे उत्तर जो है अंटार्कटिका अपवाह भी कहते हैं, यानी इसको जो है अटलांटिका अपवाह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया, यानी मैप में आप साफ समझ सकते हो कि अटलांटिका प्रवाह की क्या विशेषताओं के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है पूरा मैप दिखाना संभव नहीं है, लेकिन जो आपके समक्ष है वो अमेरिका का जो है विशिष्ट दिखाया गया है, जिसमें अंटार्कटिका महासागर की धाराएं दिखाई गई है। आपको जो है एरो के रूप में दिख रहा होगा वो जो है जो शांत धाराएं हैं और उष्ण धाराएं जो है थोड़ी गहरी रंग की दिखाई गई है। तो इस प्रकार जो अंटार्कटिका महासागर की धाराएं जो है चलती रहती है और पूरे विश्व को जो है प्रभावित करती रहती है। उत्तरी अंटार्कटिका अपवाह जो है यहाँ महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाता है और इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी अंटार्कटिका जो अपवाह के रूप में बहती ही रहती है और यह ब्रिटिश द्वीप समूह पहुंचकर वहाँ से जो है नावे के तट के साथ बहते हुए ये नावे धारा के रूप में जानी जाती है। वहाँ से ये जो है अंटार्कटिका महासागर में प्रवेश कर जाती है और दक्षिण शाखा स्पेन तथा एजोरस द्वीप के मध्य से दक्षिण की ओर ये बहती रहती है। यहाँ इसे जो है केनारी धारा भी कहते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ये प्रवेश करती है इसको केनारी धारा के नाम से जाना जाता है और यह एक ठंडी जलधारा है। किनारी धारा अंत में उत्तरी विषमवर्तीय धाराओं से मिल जाती है और उत्तरी जो है अंटार्कटिका महासागर में धाराओं के चक्र के बीच में सरगोसो समुद्र के शांत क्षेत्र है जो अत्यधिक जो है समुद्री शैवालों से भरा हुआ होता है, यानी समुद्री शैवाल जो होते हैं पूरे ही भरे होते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ जो है काफ़ी ग्रीन एल्गे पाया जाता है और एल्गे के कारण ही समुद्र के जो है काफ़ी जो है इसका अलग रंग दिखाई देता है। ये समुद्री शैवाल जो ऐसे भूरे रंग के होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो शैवाल जो होंगे
पूरे भूरे रंग के होंगे। आप लोगों ने जो है शैवाल ग्रीन रंग के देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो समुद्री शैवाल जो है भूरे रंग के होते हैं और सरगेसम नाम से भी जाने जाते हैं। यानी इस भूरे के कारण जो है सरगेसम के नाम से जो है ये जो है समुद्र जाना जाता है, जो कि काफ़ी इसको विशेषताओं को प्रकट करती है। उत्तरी जो है अंटार्कटिका महासागर में धाराओं के दक्षिणवर्तीय परिसंचरण के अतिरिक्त 2 ठंडी धाराएं भी इस महासागर में बहती है, और ये जो है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा तथा लैब्राडोर धारा है, और ये धाराएं अंटार्कटिका महासागर से अंटार्कटिका महासागर में बहती है। देखिए, अंटार्कटिका महासागर से अंटार्कटिका महासागर में जो है इसकी भाव दिशा है। लैब्राडोर धारा जो है कनाडा के पूर्वी तट पर दक्षिण की ओर बहती हुई गर्म जो है गल्फ स्ट्रीम धारा से मिलती है। हम चित्र में भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं विभिन्न तापमान वाली इस 2 धाराओं को, एक ठंडी तथा दूसरी गर्म होती है, को संगम को जो है न्यू फनलैंड के चारों ओर कोहरे का निर्माण होती है, और इस संसार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रह क्षेत्र माना बनता है। पूर्व जो है ग्रीनलैंड धारा जो है आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच बहती है तथा ये संगम स्थल पर उत्तरी जो अंटार्कटिका अपवाह के तापमान को कम कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है अपना स्थान बनाती है। यानी देखा जाए तो दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराएं ब्राजील के साओ रोको अंतरपी के निकट 2 शाखाओं में ये बढ़ जाती है, और इसकी उत्तरी शाखा जो है उत्तरी विषुववर्तीय धाराओं से मिल जाती है, और दक्षिण शाखा जो है दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ बहती रहती है, और इसे हम ब्राज़ील धारा भी कहते हैं। लगभग जो है 35 दक्षिण अक्षांश पर ब्राज़ील धारा को पछुआ पवन तथा पूर्वी की जो है घूर्णन गति जो है पूर्व की ओर मोड़ देती है, जहां यह पश्चिम पवन पर जो प्रवाह में मिल जाता है, और आशा अंतरीप के निकट दक्षिण अंटार्कटिका धारा उत्तर की ओर जो है मुड़ जाती है। यह एक ठंडी जल धारा है, और इसे जो है बेंगुएला धारा भी कहते हैं। अंत में यह दक्षिण जो है विषुववर्तीय धाराओं से मिलकर धाराओं के चक्र को पूरा भी करती है। एक और ठंडी जलधारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जिसे हम फॉकलैंड धारा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी विशिष्ट धाराओं का जो है यहाँ पर संचलन करती है।